Everybody. You are on Facebook Live with Dr. Shelley Bench, an educator and international speaker, and we are meeting here on Carbs in the Day, the platform wherein we will be discussing some important issues on women empowerment. And for this, we have invited our esteemed guest and dynamic personality, Miss Swati Jain, the director at Karyashala Foundation, a non-profit organization based in Gurgaon, working for development of unskilled people and empowering people by conducting various workshops and CSR activities. So, without any further ado, let me welcome our dynamic guest for today, Ms. Swati Jain. Welcome, ma'am, on the platform. Thank you, Shelly, for this warm welcome. How are you, Hello, ma'am? everyone. All good and hope same for you. So, before we go ahead in the session, can we know a bit about you? The audience are so curious to know about the dynamic guest for today. So, just a brief if you want to share on your own. Thank you so much for giving me so honor. So I am based in Gurgaon since 2008, and I am working with different NGOs since 2006. And in 2017, I started my own non-profit Karyashala Foundation. So I say myself as a social entrepreneur working for non-profit. सो अगर आप देखो तो मेरी मोस्ट ऑफ द लाइफ नॉन प्रॉफिट के साथ ही काम करते करते निकल रही है एंड दो चीजें मेरे दिल के बहुत पास है एक है वुमेन एम्पावरमेंट है दूसरा है स्किल डेवलपमेंट तो हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं और ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से लेडीज ऊपर उठे और उनके बारे में लोग मतलब पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैम एट ग्रास रूट लेवल तभी मैं सोचती हूँ कि कुछ होगा हमारे देश का आगे Ma'am, this is the best thing which you have brought on this show, that grassroots level, because it is enough when we talk about the big things, when we talk about the big personalities and the big things. But I feel that unless and until we don't touch the grassroots level, the things are not justified. We should start from a very small thing, and then only we can go in the big ventures. So, keeping the flow ahead, I would just like to ask one question from you. That is there any difference between feminism and women empowerment according to you? सी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे से अलग भी है फॉर मी फेमिनिज्म का मीनिंग हुआ कि वी आर fighting for equal right between male and female कि there should not be gender biased we both are capable of doing the things और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कहूंगी कि इसके अंदर इस द प्रोसेस इन व्हिच वी कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन एवरी फील्ड तभी वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है so it is interrelated to each other but they are not the same thing Okay. क्योंकि This is a age-old philosophy. We have been hearing this generation that women has been depicted as the weaker sex. So do you think in 2021 also women are the weaker sex and men are the stronger sex? Is that true? I feel कि हम लोगों ने ऐसे फीमेल we have made ourselves weaker. अगर आप देखो तो if you go back a long time history of Hinduism and all that, तो फीमेल तो कभी weaker sex ही नहीं. हमारी सारी देवियाँ ही हैं जिनको all our goddesses जिनको हम पूछते हैं. तो how can they be weak? It is something when the caste system came and people started feeling कि हाँ ladies हमसे आगे जा रही हैं, male dominance खत्म हो रहा है, उनका ego जब आया then they started कि हाँ ये नहीं कर सकते हो but still हाँ मैं कहूँगी जितना female से harassment हुआ है पिछले 1000 सालों में वो अभी is still going on मैं देखूँ क्योंकि मेरा तो काम पूरा grassroots level पे है and ladies को पता ही नहीं है मेरे rights क्या हैं आप इसको छोड़ो we are working on this sexual harassment in your workplace. We are working over that, and हमें जब हम देखते हैं, they are MBAs, they are so much qualified and all this. उनको पता ही नहीं है what is sexual harassment and how क्या हमारे पास है सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रखी है to complain या जो अंदर से डर होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी तो वो डर हमें खत्म करना है So I don't think we are weaker sex, but वो जो डर है अंदर मन के अंदर समाज का कि लोग क्या कहेंगे
I should take this step or not, कि अभी तो किसी को पता नहीं है, बाद में सबको पता लग जाएगा. जिस दिन हम इस डर से निकल जाएंगे, ये victim मोड से निकल जाएंगे, I think we are selfish. So that means it is only in the mindset. It is only the psychology that we feel so, but I don't think so any such difference or definition exists. Okay, Swati, the next question which I want to put up to you is, are there any theories related to women empowerment? Theory किस sense में? The way we have worked, or you want a general belief system in which way you are talking about? Any model or any theory which we actually follow? I mean, are there any guidelines or are there any factors or anything through which we say, yes, this is the perfect thing for women empowerment? See, अगर आप notebook से जाओ, book से जाओ, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है. लेकिन ये मतलब we have gone to such an age, we know book theoretical और practical में बहुत difference है. तो मेरा ऐसी I'm a person who works at the ground root level, और जहाँ मैं गांव में जाके और मतलब we are working in so many villages, और मैं वहाँ की हालात देखती हूँ ना, तो मुझे दो चीज बहुत अच्छी लगती है. एक तो ये है the will power of these ladies is very strong. अगर वो सोच ले कुछ करना है तो वो कर सकती है. और दूसरा जो मुझे लगता है, they are so much dependent upon their male one, कि जब तक वो हाँ नहीं करेंगे वो घर से नहीं निकलेंगे. तो मेरे तो वुमेन एम्पावरमेंट का मेरे से पूछो क्या है, तो हमें उनको घर से बाहर निकालना, उनको कोई स्किल प्रोवाइड करना, और उनको they are able to manage to earn something. क्योंकि जैसे ही वो पैसा कमाना शुरू करती है, तो कहते हैं वैसे ही they get the respect at their home. तो एक लेडी जो घर बैठी है, जो रोज गालियां सुनती थी, शाम को उसका पति आता है, शराब पी के आता है, उसको मारता है, और वो आज कहते हैं, चाहे वो कितने, मैं ये नहीं कह रही बहुत कमा रही है, लेकिन अगर वो 1000-1500 अपना कमा रही है सिलाई करके, उनके कैसे भी कमा रही है, तो आई थिंक दैट्स अ एम्पावरमेंट फॉर हर. वो 1500-1000 रुपए उसके अपने हैं, और उसके पति को लगता है ये कुछ योगदान कर रही है, चाहे वो पैसे उसके यूज करें ना करें, लेकिन उसकी थोड़ी अहमियत जो है बढ़ जाती है. इवन सेम वे मतलब जो मेजोरिटी है हमारे सोसाइटी की, और चाहे गांव में बहू जो है वो बहू ही रहती है. तो ये चीज मैंने देखी है, सास का नजरिया, सबका नजरिया उसके ऊपर चेंज हो जाता है. तो मैं तो बात नहीं करती हूँ कि हम एक बहुत बड़ा चेंज लाएं. मेरा तो होता है कि हम एक ही लाइफ में छोटा सा भी चेंज ला दें, कि वो जीरो लेवल से रोज पिटने की जगह वो आज 1000 रुपए कमा रही है, तो आई फील कि हम लोगों ने कुछ किया है. तो मेरे लिए तो वो छोटा सा कदम भी आज एक एम्पावरमेंट का नाम मैं देती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता ये छोटा सा कदम, उसको देख के 5 औरतें और आती हैं. तो जो पहली औरत जो हिम्मत करती है घर से निकलने की, मैं उसे कहती हूँ श्री, मतलब कि हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि उसके कारण ही हम बाकी लेडीज को ले पाते हैं. Exactly, I resonate with you, Swati, because what I personally feel that for anything, I think the first step should be taken, and beginning of any great movement happens only when we start it. When we take the first step, and then only the second step would be taken, and at least we all should know how to keep our foot down, to know about our rights. And if you read something in the textbook, and unless and until it is not implemented in your practical life, I think it remains as a model only, it remains as a theory only. But practical application of that thing is very, very important. So well said, Swati. Now next I want to talk about what is the best tool to assess gender imbalance in startups, and can participation of women be encouraged? See, startups के लिए मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं, बट हमें पता ही नहीं है. बेसिक तो व्हाट वी आर ट्राइंग थ्रू कार्यशाला फाउंडेशन, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप हो, एंड यू देयर आर सो मेनी स्कीम्स गवर्नमेंट की जो आप ले सकते हो, यू कैन बी बेनिफिटेड. लेकिन वही है, मैं हस्बैंड, शी इज स्टार्टिंग, शी इज एमबीए, शी इज इंजीनियर, शी इज स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस, अपनी सेविंग है, जॉब की है, 5 साल बचा के अपनी शुरू करने वाली,
लेकिन जब डिसीजन मेकिंग आती है, what we as a females lack, मैं जनरल कह रही हूँ, मतलब हमें जो है we are not so much confident in ourselves. हमें लगता है हम पैसा ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे, हम कोई गलती नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही कहती हूँ यार, तुमने घर अपना घर संभाल सकती हो, तो तुम क्यों नहीं अपना काम संभाल सकती है? तो why not you start taking your own independent decision? Why not your husband has to decide? और कई बार ना मैं डांट भी देती हूँ, यार तुम्हारा काम है, हस्बैंड से क्या पूछना है कि कैसे कॉस्टिंग होगी, क्या होगी, ये अपने आप ही डिसाइड करोगे ना, डिसीजन मेकर तुम ही होना चाहिए। So what we are trying for the starters is that we are trying to educate them कि आप जो हो डिसीजन मेकर हो, हस्बैंड का सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, वेरी गुड, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। All decisions should be yours and you should be capable enough to take right or wrong. कल रोना नहीं है उसके ऊपर। आपको लगता है कि ये ठीक है, you take the decision, आपको लगता है गलत है, तो आप बोलो गलत है, मुझे नहीं लेना है। Why you are dependent on your husband for small things? और ये मेरे साथ भी होता है, मैं जाती हूँ किसी से मीटिंग करने के लिए, तो पूछते हैं आपके हस्बैंड नहीं आए? मैं कहा हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का, मैं अपने ऑफिस का काम करने आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, तो ये मेंटालिटी जो होती है, मतलब लोगों को लगता है कि लेडीज डिसीजन नहीं ले सकती है, बट व्हाई वी फॉरगॉट कि यार इवन योर मदर हैज एजुकेटेड यू, शी इज आल्सो परफेक्ट। हाँ, मतलब मेल कैन रिस्पेक्ट देयर मदर्स, बट व्हाई कांट दे रिस्पेक्ट अदर वुमेन कि हाँ वो भी सोच सकती है, उसमें भी दिमाग है, वो भी डिसीजन ले सकती है। तो दिस इज द मेन थिंग व्हाट आई फील। और थोड़ा जो मैं देखती हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी भी है। अगर आप जैसे वी डू इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन द गवर्नमेंट्स, तो मैं उसके बाद देखती हूँ अपना हम ये फीमेल्स जो है अपना प्रोजेक्ट फाइल करती हैं, उनको घबराहट होती है। और जब मेल आता है ना, वो बिल्कुल ही चाहे वाहियात हो, मैं वाहियात वर्ड यूज कर रही हूँ, वो अपना प्रोजेक्ट फाइल लेके आता है, ही इज सो कॉन्फिडेंट ना कि हाँ ये तो हो सकता है, नंबर्स इतने खराब लिखे हो, कुछ लिखे हो, मतलब सबको नजर आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, बट दे आर सो कॉन्फिडेंट विद व्हाट दे आर सेइंग। सो एक जो मुझे लगता है वी शुड वर्क अपॉन आवरसेल्फ कि हाँ हम कर सकते हैं, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम, जो ब्रेन भगवान ने दी है वही हमें दी है। तो देयर इज नथिंग। और मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, कार को नहीं पता है ना मेल है फीमेल है, yes, वो तो जैसा आप ड्राइव करोगे वैसे ही हो जाएगी। perfect, that is very good। हाँ, तो बाकी चीज में क्यों सोचना है कि आप डिसीजन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वही चीज मशीन को नहीं पता है कि मिक्सी है, कार है, नोबडी नोस कि हाँ ये मेल है फीमेल है, आप जैसे ऑपरेट करोगे वैसे ऑपरेट करेगा। And whosoever operates it, whether it is a man or a woman, it hardly matters, same way is your brain, जिसको जितना करोगे, डिपेंडेंट करोगे अपने मेल पुलिस के ऊपर, वो डिपेंड होगा, अपने आप डिसीजन लोगे तो अपने आप काम करेगा। सेम वे इट गोस विद एवरीथिंग। but Swati, I think this is possible only and only when there is an awareness, when a woman knows what her rights is. You know, she should be acquainted with right to education, right to freedom, right to speech. Because if she is not known to all these things, I don't think so she will be capable to take even any decision. So I think we all should spread awareness among all the female community so that they become independent। शैली, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, टोटली एग्री करती हूँ, और इसमें मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि हम जो आप कह रहे हो, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, बट हम चाहे जूम कॉल करें या फिजिकल करें ना, लेडीज ये सुनना चाहती ही नहीं है फीमेल्स। वो मतलब sometimes that we call it, that ego comes। हाँ, they don't want to listen to it, they don't want to, मतलब कि हाँ हमें, और एक मैं ये भी कहूंगी कि हमें सब कुछ नहीं पता है। There are so many things we are still need to learn and need to grasp। जिसे हम सोचेंगे कि हमें सब कुछ आ गया है, तो मुझे लगता है कि हम we need to fight against chauvinism, male chauvinism, because see, if male feels that they should be the best, they should be the boss, female cannot be the boss, female can never be correct. So that notion of theirs should be challenged, and this will happen only when we all females are educated and when we are aware.
I think so. नहीं, I totally agree with you, but उसके लिए कहते हैं I think we are working on the grassroots level, लेकिन जो हमारे corporates वगैरह हैं, मैं कहती हूँ why not you take workshop in every 6 months? Yes. और एंड उनको लगता है कि नहीं हमने एक बार तो ले ली है, मैंने कहा एक बार लेने से कुछ नहीं होता, we keep on need to brush up, हम कहते हैं कि हमें काम करना है तभी तो होगा ना वो। Correct. और ये इट इज समथिंग कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में तो लिख दिया गया है कि होना चाहिए, बट इट इज समथिंग कि हाँ कॉर्पोरेट कितना कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स कितना ध्यान दे रहे हैं, इवन मतलब आई फील कि हाँ घर में इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस ओनली। हम लड़के को क्यों बोलते हैं कि भैया कुछ मत सीख, मैं तो कहती हूँ लड़के को सिखाना चाहिए खाना बनाना, लड़की को होना चाहिए तो ऑफिस जाना। Perfect. Good. I like it. हम लोग जो है बच्चा जैसे आई जस्ट लव द मूवी 3 इडियट्स। Yes. बच्चा पैदा होता है हर सोच लेते हैं लड़का तो इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो डॉक्टर बनेगी। इट हैपेंड विद मी। So it is in the mindset. That means it is in the mindset. हाँ, तो इट इज समथिंग कि हमें घर से क्यों नहीं शुरू करते हैं हम। हमारी जब मतलब इफ डॉटर इज 15 इयर्स ओल्ड, हम कहते हैं किचन में जाने को, हम लड़के भी नहीं बोलते हैं जा चाय बना के ला। Correct. See, अगर मैं तो कहती हूँ if every female of the house, every mother start doing it, ना change अपने आप आ जाएगा। Yes. And simply as it is said, that charity begins at home. Why not women empowerment? Why not it begin at our home so that it carries forward to the other homes also and to the society also? So you are very much correct to say that we should start it at our home. So Swati, I will take you to the next question of mine. That we have talked about the domestic violence over here. So women's empowerment increase the chances of domestic violence. Is it true, or controlling the women in South Asian countries only? मैं इसको ये जाएगा इंडिविजुअल्स के ऊपर। मैं इसको एक टर्म नहीं दूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही हंसे, बिकॉज ये आपका माइंडसेट है। सो इन 2012 to 2015 I was heading Gurgaon chapter in anti-corruption society. So we were doing these cases domestic violence. तो उसमें जो हमने देखा, चाहे वो लेडी पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, इसमें कुछ नहीं आता है, वो कॉल तो कर देंगे हमें कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, और जब हम पहुंचते हैं हम कहते हैं चल पुलिस स्टेशन, हम खड़े हैं पीछे FIR लिखवाएं, whether she is educated, uneducated, poor या rich, it hardly matters, nobody wants to come in front. तो अब मुझे बता, अब जब हम पहुंच रहे हैं, हम अपनी टीम लेके हम लड़ने को तैयार हैं, हम पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं, या सेइंग कि हम आपका खर्चा उठाएंगे, हमारे साथ चलो करो, बट जब आपका सोसाइटी के ऊपर आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इट इज माइंडसेट, इट इज टोटली माइंडसेट। आप कहते हैं मैं, क्योंकि बिकॉज मैंने केसेस देखे हैं, आप मैनेजर हो कंपनी की कॉर्पोरेट के अंदर, यू आर अर्निंग 2 लाख पर मंथ, लेकिन आप डोमेस्टिक वायलेंस क्यों झेल रही हो कि लोग क्या कहेंगे। अब जो फीमेल जिसके नीचे 100 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट का नाम क्या देंगे जब वो खुद अपना डोमेस्टिक वायलेंस सॉल्व नहीं कर सकती है। तो ये चीज मैं कहूंगी, ये दोनों डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन एम्पावरमेंट को हम जो है इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। But Swati, I have a very connected question over here. That long time back, we used to feel that domestic violence exists only in the remote parts of India, in villages, or especially with the ladies who are not educated, maybe housewives. But what I have felt that even in the metros, and even with the independent ladies who are in a very high profile job, I have often seen that domestic violence exists there also. So is it related to your education, with your, whether you're independent or not, or whether you're financially secured or not? Because it happens in all sectors. So what would you want to say? See, it is the mindset और हमारा courage to take first step. हम वो मतलब एज ए फीमेल आपको डर लगता है अपना पहला स्टेप लेने में कि मेरे पेरेंट्स की बुराई तो नहीं होगी, मैं छोड़ दूंगी, सोसाइटी क्या कहेगी मुझे, अगर मेरा बच्चा है मेरे बच्चे को फादरली लव मिलेगा नहीं मिलेगा,
हम मतलब फीमेल्स उसी में झूलती रह जाती हैं। मतलब मैं जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हिच आई हैव सीन। फिर 2015 में आई रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ ना, बिकॉज आई फील कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं इस पोजीशन का क्या करूंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं कर रहे हैं। बिकॉज एक बार नियर गुड़गांव, मैं गुड़गांव का इंचार्ज था, आई वाज इन ए मैरिज इन बेरड, और मेरे पास फोन आ रहा है रात को 11 बजे। मैं हस्बैंड को लेकर छोड़ मैरिज छोड़ चल यहाँ पे कहते हैं, मैंने आई कॉल माय फीमेल्स पुलिस आल्सो। हम पहुंचे हैं रात को 2 बजे, पूरा मुंह सूजा पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन हाँ लेडी का, लेकिन वो शी इज नॉट एबल, मतलब फिर हमें भी गुस्सा आ गया। हमने कहा रात के 2 बजे उठ के अपने घर से आ रहे हैं देखने के लिए, अब तो मुझे पक्का लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन, लिखवाएंगे। स्टिल कहते हैं नहीं कल क्या होगा, आप तो चले जाओगे, मेरे माँ बाप मुझे मिलेंगे कि क्या हुआ, थोड़ा पिटा था। तो इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड, इट इज अवर माइंडसेट कि हम पहले स्टेप लें। और आज के टाइम में जब रिलेशनशिप is very common, divorce is very common, so why are you so afraid to take this first step? See, you are independent. See, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो मैं समझती हूँ, आप इंडिपेंडेंट हो, आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रही हो, so why you are afraid to take the first step? और हो सकता है कल आपका पहला स्टेप देख के जो आपके आसपास हैं उनको भी हिम्मत आए। And there are examples of ladies who have done this. हम उनको क्यों नहीं देखते हैं? और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि जो हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे। आप इनके देखो, इट इज मैं शाम को आई और एक लेडी वो चिल्ला रही थी, सबके ऊपर दो आदमी खड़े थे, लिफ्ट के पास चिल्ला रही थी। हम लोग आए, हम लोग चुपचाप खड़े हो गए आगे। हमें से किसी ने नहीं कहा कि क्या बात थी क्या नहीं थी, बल्कि जो आए she did started criticizing the female कि यार वो 3 आदमियों पे भी चिल्ला रही है। हमने जानने की कोशिश की उसके साथ क्या हुआ, लिफ्ट में क्या नहीं हुआ, या उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी नहीं थी। ये जो हमारा माइंडसेट है जजिंग का, विदाउट नोइंग एनीथिंग वी स्टार्ट जजिंग, ये सारा प्रॉब्लम इसका है कि फीमेल स्टेप लेती है तो डर लगता है, और जो स्टेप लेती है कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है, बिकॉज हम वी स्टार्ट जजिंग सो अर्ली। और अगर यहाँ पे आदमी चल रहा होता तो हम सब पूछते क्या हुआ, जो कहते हैं गार्ड से पूछते क्या लिफ्ट खराब हुई थी, कुछ हुआ था, बट फीमेल चला रही तो किसी ने नहीं सोचा। But Swati, do we live for ourselves or do we live for the society? Why are we so bothered about what the society will talk about us, what the people will talk about us? Why did social stigma is always there? Why can't a woman live on her own for herself? ये चीज होंगी मैं जो यंग जनरेशन आ रही है, जो यंग जनरेशन है, the girls which I am seeing which are now fully educated और जिनकी mothers strong है, I will say hats off to the mothers जिन्होंने कहा है बेटा हमने आपको पढ़ा दिया है, अब आगे लाइफ आपकी है, whether you want to get married or whether you don't want to get married is upon you. मैं हम अपना टाइम में बताती हूँ, हमारे टाइम में अगर गर्ल की शादी 25 साल तक नहीं हुई है तो इट वाज समथिंग कि माँ को चिंता हो ना हो, लोग जरूर आके ताले मार रहे थे, अभी आप सोच रहे हैं क्या हुआ है, तो ये क्या है। अच्छा, और पहले आप देखो, I am talking about myself. My father is, he is a civil. He was a civil doctor in UP government service. So, and my mother, she is a psychiatrist. So, I belong to a educated class. हमारा सारा जो था friend circle, it was same friend circle जो सारा पढ़ा लिखा था, engineers, doctors, judges था. But तब भी 25 years back, it was a stigma if you're not getting married on time. But आज आप देखो, it's nothing, it's your own wish whether you want to get married or not. आज ये चीज नहीं है, so things are changing. But जो हमारे एज के लोग हैं वो शायद बीच में अटक गए हैं, but I am very proud of these mothers जिन्होंने अपनी बेटी गर्ल्स को ऐसे कल्टीवेट किया है कि अपनी सोसाइटी के बारे में मत सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो। और मैं ये चीज कहती हूँ, आदमी अगर 40 साल का भी हो जाता है कोई नहीं पूछता कि शादी कब करेगा, अरे तुम्हें लड़की के पीछे क्यों पड़े हो तुम,
So it is all our mentality, and I will say कि we should improve. And ये जो है मैं वही कहती हूँ charity happens from home, so same changes start from home. तेरी मदर की कल्टिवेशन है, how you cultivate your girl or boy. उसको आप सिखाओ कहते हैं गर्ल को to be strong and boy को सिखाओ to be emotional. Swati, my last question to you is, do you think any CSR activities can help us for women empowerment? Can it bring a change, and how? Of course, they can, because CSR activities अगर corporates करें और कर रहे हैं, they are actually हमारे देश में इतना बड़ा change चाहिए कि जो हो रहा है change हमें नजर नहीं आता है. Yes. और हाँ, लेकिन change हो रहा है. आप जाके देखो अगर because मैं suppose मैं एक गांव में 10 साल से जा रही हूँ, तो I can see the change over there. Change हो रहा है. चाहे हमारी चीज जैसी छोटी एनजीओ कर रही हो या कॉर्पोरेट कर रहे हो थ्रू सीएसआर एक्टिविटीज, लेकिन चेंज आ रहा है. तो और बीच में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आप सारे सीएसआर को एक ही काम दो करने के लिए. आप ये मत सोचो कि आप डिवाइड कर दो कि आपको 10 जगह में पैसा लगाना है. अगर एक कंपनी जो है अपनी एक्टिविटी में एक ही जगह पैसा लगाएगी ना, तो चेंज नजर आएगा. अब उसको 10 जगह काम करना है, इसको एनवायरमेंट पे भी काम करना है, इसको वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करना है, इसको स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना है. आपने 4-5 चीजें दे दी है. पैसा तो उतना लिमिटेड ही है ना देश के पास, हर कॉर्पोरेट के पास. अगर वो वही पैसा एक चीज में लगा दे, तो इसमें आपको चेंज नजर आएगा. Definitely. I think, Swati, it was really an inspiring session with you, because we really discussed on the topics which were really on the grassroots level regarding women empowerment. And I think because of the time constraint, I could not take the session ahead. Otherwise, I had so many questions in my mind and I wanted to discuss so much with you. So you came out as a real hero for all the women empowerment for us, and it was a real pleasure talking with you, and with folded hands, I am really very humbled for you to grace our platform, Quabs K, from your busy schedule. And I think I request our team if they can play the video of our dynamic guest, Ms. Swati Jain. Kudos, Swati. I just love W for we and W for women, we do. That was the best thing which I liked in your video. And about all the social work and whatever, there is a plethora of work, which you are doing. So I wish you all the best. That go ahead in your journey and empower the rest of the women all around. So thank you so much, Swati. Thank you, Sherry. Thank you so much. And you must have taken the time from your busy schedule and be a part of our honorable guest. I hope we will meet soon again. So thank you so much. Goodbye and good evening.
Thank you, Shalini, so much.